میں آپ اور ہم سب جل رہے ہیں، ہمارے ماحول میں پارا آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے 2022 کو ہاٹیسٹ سمر ایور کہا گیا، یعنی دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سمر تھا۔ 2024 کی گرمیوں نے تو حد ہی کر دی۔ جیکب آباد اور گردنوا کے علاقوں میں انسانی برداشت سے بھی اوپر ٹیمپریچر چلا گیا۔ پاکستان اور انڈیا میں ہیٹ ویوز کا آنا اب معمول بن چکا ہے۔ اس سال کراچی جیسے شہر میں جولائی میں ہاٹیسٹ ایور نائٹ تھی، اتنی گرم ترین رات تھی۔ 2019 کے اس آرٹیکل کو دیکھیں، دنیا کی 15 گرم ترین جگہیں پاکستان اور انڈیا میں ہیں۔ 2022 کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں میں 5ویں نمبر پر اور انڈیا تیسرے نمبر پر موسٹ ولنریبل یعنی غیر محفوظ ملک ہے۔ بی بی سی کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس سال صرف 6 دن میں 500 لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں ہیٹ ویوز کی وجہ سے۔ جون 2024 میں صرف کراچی میں 450 لوگ جان سے گئے ہیٹ ویوز کی وجہ سے۔ انڈیا میں بھی اس طرح کی غیر معمولی رپورٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبلی کچھ دن پہلے ساؤتھ افریقہ میں شدید قحط سالی یعنی ڈراؤٹ کے حالات ہیں۔ اس طرح کی قحط سالی کافی دہائیوں میں نہیں آئی۔ دنیا میں کئی ریکارڈ بارشیں تو کئی پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ پرابلمز اور پرابلمز۔ مسائل کو سمجھنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے، عالمی تپش سے کیسے بچ سکتے ہیں، روز بروز بڑھنے والی گرمی آخر کب کم ہوگی، ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ان ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ہم ایک فرد واحد یا قوم کی حیثیت سے کیا سستے اور مفید اقدامات لے سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں۔ ماحول کیا ہے؟ ماحول ہمارے قدرتی ارد گرد اور حالات کو شامل کرتا ہے جس میں جاندار بشمول انسان، جانور اور پودے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ہوا، پانی، مٹی اور ماحولیاتی نظام شامل ہیں جو قدرتی دنیا کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم انسان مختلف سرگرمیوں سے ماحول کو اچھا اور برا رکھ سکتے ہیں۔ ماحول فیکٹس پر چلتا ہے، وہ امریکہ یا چائنا جیسے سپر پاور سے نہیں ڈرتا۔ اس کا ایک سمپل پرنسپل ہے، جتنے آپ ماحول دوست رہو گے یعنی جتنی دوستی آپ ماحول سے بنائے رکھو گے، ریٹرن میں ماحول آپ کو اتنے اچھے سے رکھے گا۔ ہم انسان اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے آلودگی پھیلاتے ہیں، جیسے ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، مٹی کی آلودگی، یہ ماحول کو گندا کرتی ہے۔ پرابلم نمبر 1، گلوبل وارمنگ یعنی عالمی تپش۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کا عمل ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد سے جاری ہے۔ یہ زمین کی سطح، سمندر اور ہوا کی درجہ حرارت میں عمومی اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عالمی تپش کی وجوہات میں سے نمبر 1 وجہ ہے گرین ہاؤس گیسز۔ ناظرین، گرین ہاؤس گیسز وہ گیسز ہیں جو زمین کے ماحول میں حرارت کو پھنساتی یعنی ٹریپ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ یہ گیسز زمین کی سطح سے نکلنے والی حرارت کو واپس بھیجتے ہیں اور اپنے ماحول میں پھنساتے ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، واٹر ویپر جیسی گیسز گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ اس کے علاوہ ایندھن کا استعمال یعنی کوئلہ، تیل اور فوسل فیولز کا استعمال اور جنگلات کی کٹائی بھی عالمی تپش کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ عالمی تپش کے اثرات نہ صرف ماحولیاتی بلکہ اقتصادی اور سماجی سطح پر بھی نمایاں ہو سکتے ہیں اور اس لیے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ دنیا بھر میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ پرابلم نمبر 2، ایل نینیو۔ ایل نینیو ایک موسمیاتی مظہر ہے جس میں وسطی اور مشرقی یعنی سینٹرل اینڈ ویسٹرن پیسیفک اوشین کے سطحی پانی معمول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی غیر معمولی تبدیلی کی وجہ سے عالمی طور پر دنیا کے ویدر پیٹرنز یعنی موسم کے نمونے غیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں زیادہ بارش اور کچھ میں خشک سالی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ریگولر سائیکل نہیں ہے بلکہ عام طور پر ہر 2 سے 7 سال بعد ہوتا ہے اور 9 ماہ سے 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ ایل نینیو کا آخری ایونٹ 2019 سے جنوری 2020 تک چلا تھا، جس کی وجہ سے آسٹریلیا میں بھینکر آگ دیکھنے کو ملی تھی۔ انٹرسٹنگ طور پر ایل نینیو کا ساؤتھ افریقہ پر آسٹریلیا اور ایشیا کے مقابلے میں الٹا اثر پڑتا ہے۔ ایل نینیو کی وجہ سے ساؤدرن یونائٹڈ اسٹیٹس اور پیرو میں زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں زیادہ قحط سالی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایل نینیو کے اثرات بارش اور خشک سالی تک محدود نہیں ہیں، یہ عالمی درجہ حرارت کو بھی متاثر کر
सकता है, जंगलाती आग के खतरे में इजाफा कर सकता है, समुद्री निज़ामों में खलल डाल सकता है और ज़राअत, माहीगीरी और पानी के वसाइल पर असरअंदाज हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, ला नीनिया। ला नीनिया भी एक मौसमियाती मज़हर है, लेकिन ये एल नीनियो के बिल्कुल बरक्स है, जिसमें वही इलाके मामूल से कम दर्जा हरारत का सामना करते हैं। ला नीनिया के नतीजे में मुख्तलिफ मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। ला नीनिया की वजह से साउदर्न यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा बारिश के बजाय शदीद खुश्क साली होती है, और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में खुश्क साली के बजाय ज़्यादा बारिशें या फ्लड्स देखने को मिलती है। ये जाहिर करता है कि ला नीनिया बिल्कुल एल नीनियो के बरक्स है। एल नीनियो और ला नीनिया के वाक़यात अमूमन बेकायदगी से होते हैं। इन वाक़यात की तादाद और वक्त मुख्तलिफ अवामिल से मुतासर होती है जो ज़मीन के मौसमी निज़ाम के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये पेशन गोई करना मुश्किल होता है कि अगला वाक़या कब होगा। ताहम साइंसदान समंदर के दर्जा हरारत और मौसमी हालात की निगरानी करते हैं ताकि जब एक एल नीनियो या ला नीनिया बन रहा हो तो पता चल सके। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान में एल नीनियो की वजह से कमज़ोर मानसून देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में कम बारिश और कहत का इम्कान होता है। इसके बरक्स भारत और पाकिस्तान में ला नीनिया की वजह से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान होता है। प्रॉब्लम नंबर 4, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दर्जा हरारत और नमी। नाजरीन, अमूमी तौर पर आप जब अपने मोबाइल फ़ोन्स पर टेम्परेचर देखते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के टेम्परेचर दिख रहे होते हैं, एक आम टेम्परेचर और उसके नीचे लिखा होता है रियल फील। फ़र्ज़ करो आपका मोबाइल आपके दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, लेकिन उसके नीचे रियल फील 39 डिग्री दिख रही है। इस अमूमी तौर पर दर्जा हरारत तो 32 डिग्री है, लेकिन आप जो महसूस कर रहे हैं दर्जा हरारत वो 39 डिग्री है। ऐसा क्यों है? नाजरीन, कराची का 35 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता है, या फिर दिल्ली और मुंबई की टेम्परेचर की भी यही कहानी होती है। नाजरीन, 2 इलाकों का या 2 शहरों का टेम्परेचर तो एक है, लेकिन फील अलग अलग हो रहा है। ऐसा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। नाजरीन, दर्जा हरारत किसी चीज़ की हरारत या सर्दी की मिकदार का पैमाना है जो आमतौर पर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। इसके अलावा नमी यानी ह्यूमिडिटी हवा में पानी के बुखारात की मिकदार को जाहिर करती है। ये आमतौर पर फीसद में जाहिर की जाती है। आसान अल्फाज में दर्जा हरारत हवा की हरारत या सर्दी को नापता है, और नमी हवा में पानी की मिकदार को नापती है। कम नमी आमतौर पर दर्जा हरारत को ज़्यादा आरामदेह बनाती है और ठंडक में मदद करती है, जबकि ज़्यादा नमी दर्जा हरारत को ज़्यादा गर्म और गैर आरामदेह बना सकती है। इस वजह से कराची में ज़्यादा नमी होती है और लाहौर में कम नमी होती है, तो कराची का 35 डिग्री ज़्यादा गर्म महसूस होता है लाहौर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से। प्रॉब्लम नंबर 5, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी शहरी जजीराई असर। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वो मज़हर है जिसमें शहर या दीगर शहरी इलाकों का दर्जा हरारत उनके गिरदनवा के देही इलाकों के निस्बत ज़्यादा होता है। इसका सबब शहर की तामीराती खुसूसियात जैसे कि सड़कें, इमारतें और दीगर मसनूई सतहें हैं जो सूरज की हरारत को जज़ब करती हैं और उसे वापस नहीं छोड़ती, जिससे शहरी इलाके में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉब्लम नंबर 6, हीट वेव यानी गर्मी की लहर। ये एक तवील अरसे तक जारी रहने वाले इंतहाई गर्म मौसम की हालत है जो किसी इलाके के मामूल से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये एक तरह की शदीद गर्मी की मुद्दत होती है, ज़्यादा वक्त तक जारी रह सकती है। गर्मी की लहर के दौरान दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि लोगों, जानवरों और पौधों के लिए गैर आरामदेह या ख़तरनाक हो सकता है। ये अक्सर ज़्यादा नमी के साथ आती है जो गर्मी को और भी शदीद महसूस कराती है। किसी भी मुल्क में हीट वेव का ऐलान कुछ पैरामीटर्स देख के किया जाता है। पाकिस्तान में गर्मी की लहर आमतौर पर उस वक्त ऐलान की जाती है जब दर्जा हरारत शहरी इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और देही या सहराई इलाकों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। ये हदें मखसूस इलाके और उसकी तारीखी मौसमी हालतों के लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। मौसमियाती महकमा दर्जा हरारत और दीगर मौसमी हालात पर नज़र रखते हैं ताकि गर्मी की लहर का ऐलान और इंतबा जारी किया जा सके। नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं उन इंग्रेडिएंट्स पर जो ये मसाइल पैदा करते हैं। नंबर 1, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। नाजरीन, जो भी कार्स, बाइक्स, बसेस, फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पर चलती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस माहौल में छोड़ती है, जिसकी वजह से एक आलमी तपश में इजाफा होता है। नंबर 2, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी बिजली पर चलने वाले आलात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसी। नाजरीन, एयर कंडीशन किसी एक कमरे को तो ठंडा करती है, लेकिन उसके माहौल में बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। वो अपने बाहर वाले यूनिट से ज़्यादा गर्मी अखराज करती है। एयर कंडीशन
सिविलाइजेशन बड़े मकदार में बिजली इस्तेमाल करती है, जो अक्सर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला या कुदरती गैस से पैदा होती है। ये ज्यादा तवानाई की खपत, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। नाजरीन, इन शदीद मौसमी हालात की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लड्स, कैद साली और आतिशज़दगी जैसे मनाजर देखने को मिलते हैं। ऐसे शदीद मौसमी हालात न सिर्फ मौसम पर असर डालते हैं, इनके किसी भी मुल्क की मईशत पर इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता फ्लड की वजह से 1739 लोग जान से गए और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को $30 बिलियन यानी $30 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। याद रहे कि हम IMF से सिर्फ $1 बिलियन के कर्जे के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उनका हर नखरा बर्दाश्त कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं ऐसे सॉल्यूशंस पर जो आप अकेले से या फिर बतौर कौम करके इन शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा लगाना। दरख्त ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और उसे अपने जिस्मानी साख्त में तब्दील करते हैं। इस अमल से कार्बन स्टोरेज बढ़ता है और ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम होती है, जिससे आलमी दर्जा हरारत को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा दरख्त माहौल को ठंडा करने, नमी बरकरार रखने और मिट्टी की हिफाजत करने में भी मदद देते हैं, जो कि माहौलियाती तवाज़ुन के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह की शजरकारी मुहिम हम अवामी आगाही के लिए भी चला सकते हैं और अपने तौर पर जितना हो सकता है उतना दरख्त लगाएं। माजी में पाकिस्तान ने दरख्त लगाने के लिए बड़ी शजरकारी मुहिमात शुरू की, जैसे बिलियन ट्री सोनामी या 10 बिलियन ट्री सोनामी, जिसमें तकरीबन 10 बिलियन तक पौधे लगाए गए। इसके अलावा हुकूमत अपने तौर पर ऐसे माहौलियाती कवानीन और इकदाम उठा सकती है जिससे जंगलात की कटाई और माहौलियाती नुकसान को रोका जा सकता है। शजरकारी हयातियाती तनु यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है, क्योंकि दरख्त मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के लिए रिहाइश फराहम करते हैं। पाकिस्तान के दरख्त लगाने के इकदाम माहौलियाती फ़वाइद के साथ कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, फ़िज़ाई और आबी मयार की बेहतरी और माहौलियाती तवाज़ुन के क़याम में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह की मुहिम का आगाज़ हम अपने तौर पर छोटी लेवल पे और हुकूमती सतह पर भी कर सकते हैं। दरख्तों में आम का दरख्त और पीपल का दरख्त ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और इनकी बड़ी साइज और घनी छांव और वसी जड़ों की वजह से माहौल ठंडा रहता है। हमें आम और पीपल के दरख्त लगाने चाहिए, जो कि दूसरे दरख्तों से माहौल के लिए ज़्यादा बेहतर है। सॉल्यूशन नंबर 2, बैनिंग व्हीकल्स बिल्डिंग मेड अप ऑफ ग्लासेस एंड एस्फाल्ट। हमें फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या उसके बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या साइकिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे गाड़ियों के अखराजात और हरारत की पैदावार कम होती है। फर्ज करें एक शहर है जिसमें 100 गाड़ियाँ हैं जो रोज 1 मील का सफर करती हैं। अगर एक गाड़ी 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है तो 100 गाड़ियां तकरीबन 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगी। इस जगह पर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी फर्ज करें 10 बसेस का इस्तेमाल करें, तो अगर एक बस 300 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अखराज करेगी तो 10 बसेस का अखराज 3 किलोग्राम होगा। यानी बसेस का अखराज 3 किलोग्राम और गाड़ियों का अखराज 10 किलोग्राम, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का। ज्यादा अच्छा होगा कि हम साइकिल्स पर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चले जाएं। इसके अलावा शीशे की इमारतें सूरज की रोशनी को जज़ब और कैद करती हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी और इर्द गिर्द के दर्जा हरारत में इजाफा होता है। तो शीशे की सतहों पर पाबंदी या कमी करने से यह हरारत जज़ब कम होगी और माहौल ठंडा रहेगा। एस्फाल्ट की सतहें सूरज की हरारत को जज़ब और कैद करती है, जिससे शहरी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो इसका इस्तेमाल पर पाबंदी या कम करने से हरारत का जज़ब कम होता है और सतही दर्जा हरारत कम होता है। एस्फाल्ट के मुतादिल मवाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो हरारत को कम जज़ब करते हो, जैसे कि अक्कास या पायदार पुख्ता सड़कें हरारत के जज़ब को कम करती हैं और शहरी माहौल को ठंडा रखती हैं। एस्फाल्ट और गिलासेस का इस्तेमाल कम करने से हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से भी बच सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज ऑफ रेडिएंट कूलिंग इन स्पाइट ऑफ एसी। नाजरीन, रेडिएंट कूलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे आजकल जदीद इमारतों में नस्ब किया जाता है, जहां छतों, दीवारों या फर्श में पाइपलाइंस के जरिए ठंडा पानी गुजारा जाता है जो हरारत को जज़ब करता है और इमारतों के अंदरूनी दर्जा हरारत को कम करता है। इस तरह माहौलियाती फ़वाइद भी हासिल होते हैं और तवानाई की भी बचत होती है। जदीद टेक्नोलॉजीज और मटीरियल्स जैसे कि पायदार रेडिएंट कूलिंग पैनल्स और खुसूसी
कूलिंग मवाद इस्तेमाल करके रेडिएंट कूलिंग को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इस तरह की टेक्निक को कदीम ज़माने में भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जगह पर अगर हम एसीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे माहौल की हरारत भी बढ़ेगी और तवानाई ज़ाया भी होगी। सॉल्यूशन नंबर 4, पेंटिंग रूफ्स विथ वाइट कलर। अगर आप अंदरूनी माहौल को ठंडा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी छत पर वाइट कलर करवाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग हरारत को जज़ब नहीं करता। इससे आपका अंदरूनी माहौल ठंडा रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 5, शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। माहौल दोस्त तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। हमें बरकी तवानाई को माहौल दोस्त रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो या टाइडल जैसे ज़राए से हासिल करना चाहिए। इसके अलावा ई व्हीकल्स के इस्तेमाल से हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इस तरह ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी और हमें आलमी तपश में रिकॉर्ड कमी देखने को मिलेगी। मजमूई तौर पर हम इन इकदाम को उठाकर माहौल दोस्त बन सकते हैं। याद रहे, जो हम आज बोएंगे कल वही काटेंगे। एज यू सो शैल यू रीप। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये काम आपके लिए कुछ सेकंड्स का है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है।